سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد قد آتانا الرسول هاديا للعقول رب تمم لنا أمرنا بالقبول ایک سوال جیری ورگیز کا آیا ہے جو انگریزی میں ہے. وہ پوچھتے ہیں تھامس ڈڈ سے ٹو جیسس مائی گاڈ اینڈ مائی لارڈ ان دی بائبل, ہاؤ ڈو یو سے ہی از ناٹ مینشنڈ ان دی بائبل ایز گاڈ. ہمارے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ تھامس نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مائی گاڈ مائی لارڈ, تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے. لیکن آپ نے غور نہیں کیا, میں نے چیلنج کیا تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ بائبل کے اندر ایک بھی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, ایک بھی سینٹنس نہیں ہے. دیر از ناٹ اے سنگل انایکویوکل اسٹیٹمنٹ ان دا کمپلیٹ بائبل, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. میں نے یہ کہا میرے تقریر میں کہ بائبل میں ایک بھی جملہ نہیں ہے انایکویوکل, صاف جملہ, بنا اختلاف کا ایک بھی جملہ نہیں ہے جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. یہ جملہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بائبل کا حوالہ ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 28 کا, اور یہ جملہ تھامس نے کہا, جیزس کرائسٹ نے نہیں, پیس بی اپون ہم. اور میں کافی تقریر کرتا ہوں. ایک وقت میں گیا تھا چنئی میں, تقریر کے بعد ایک ہندو بھائی اتنا متاثر ہوا اور کہنے لگا آپ تو بھگوان ہیں. اگر اس نے کہا میں بھگوان ہوں تو کیا بھگوان ہو جاتا ہوں میں اس کے حساب سے؟ اور کل آپ جا کے بولیں گے ذاکر نے بھگوان بننے کا دعویٰ کیا. غلط ہے, میں نے کبھی بھی نہیں کیا, میں تو انسان ہوں. وہ شخص نے کہا میں بھگوان ہوں, اس سے تھوڑی میں بھگوان ہو جاتا ہوں, اس کے سمجھ سے اس نے کہا. اور اب تحقیق کرتے ہیں, آپ کانٹیکسٹ میں اگر جاتے ہیں اس ببلیکل ورس کی, اس ببلیکل ورس کے اندر گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 24 سے 29, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 24 سے 29 تک آپ پڑھیں گے تو کانٹیکسٹ ملے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپلز کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام از الائیو, زندہ ہے. جو تھامس نے کہا میں اس بات کو نہیں مان سکتا ہوں جب تک میں خود عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے وہ نشانی نہیں دیکھوں گا, وہ کھیل کے نشانی, جب تک میں میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں ڈالوں گا, جب تک میں میرا ہاتھ ان کے بازو میں نہیں ڈالوں گا, تب تک میں یہ نہیں مانوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہے. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں ہیبرو میں شلام علیکم, سلام علیکم, آپ پر امن ہو, اور کہتے تھامس یہ لو میرا ہاتھ اور دیکھو کھیل کے نشانی, تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ڈالو اور تمہارا ہاتھ میرے بازو میں ڈالو, پھر تم کو یقین ہوگا کہ میں زندہ ہوں. یہ کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد تھامس کہتے ہیں مائی گاڈ مائی لارڈ, چوک کے. کانٹیکسٹ میں پتا لگتا ہے
کہ چौک کے انہوں نے کہا مائی گاڈ مائی لارڈ. مثال کے طور پہ اگر میں کس سے بات کر رہا ہوں, میرے دوست سے, اور 1 گھنٹہ نکل جاتا ہے, پھر دوست کہتا ہے اتنا لیٹ ہو گیا, یا خدا, یا اللہ, او مائی گاڈ اٹس سو لیٹ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا دوست مجھے گاڈ کہہ رہا ہے. اف ہی میکس ایکسکلیمیشن مائی گاڈ اٹس سو لیٹ, اگر میں کہوں گا کہ مائی گاڈ اس نے مجھ سے کہا, وہ تو ایکسکلیمیشن ہے. تو اسی طریقے سے تھامس نے کہا مائی گاڈ مائی لارڈ. اس کا مطلب نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے خدا ہو. یہ بالکل غلط فہمی ہے. اگر کہتا بھی ہے تو یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا بننے کا دعویٰ کیا. کئی عیسائی بھائی آج بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. اس کا مطلب تھوڑی عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے پوری بائبل میں کہیں بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. جیسنٹا تھامس کا سوال انگریزی میں ہے. Our concept of Trinity does not mean 3 gods, but one God in 3 persons, Father, Son, and the Holy Ghost. They are one only. You should understand in right perspective. सवाल है, our concept of Trinity does not mean 3 gods, but one God in 3 persons, Father, Son, and Holy Ghost. They are one only. You should understand in the right perspective. یہ سوال سے پتا چلتا ہے کہ وی ڈونٹ بلیو ان 3 گاڈس بٹ 1 گاڈ ان 3 persons. یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم عیسائی ٹرینٹی میں مانتے ہیں. یہ لفظ ٹرینٹی آپ اگر بائبل پڑھیں گے تو بائبل میں ٹرینٹی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. دا ورڈ ٹرینٹی ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی ویئر ان دا بائبل. یہ لفظ ٹرینٹی بائبل میں کہیں بھی نہیں آتا. لیکن جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں, قرآن شریف میں ٹرینٹی آتا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً, مت کہو ثلاثہ, مت کہو ٹرینٹی, اِنْتَوْا خَيْرٌ لَكُمْ, دس از اسٹاپ اٹ بیٹر فار یو, بند کرو, یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو قرآن میں ٹرینٹی ثلاثے کا لفظ آیا ہے, لیکن کہا گیا ہے کہ مت کہو ثلاثہ, یہ غلط ہے. ثلاثے کا لفظ, ٹرینٹی کا لفظ اور ایک بار آیا سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 73 میں, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے لَقَدْ كَفَّرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ثلاثہ ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ٹرینٹی ہے. تو قرآن میں ٹرینٹی کا ذکر ہے, لیکن کہا گیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں غلط کر رہے, کفر کر رہے ہیں. بائبل میں کدھر بھی ٹرینٹی کا لفظ نہیں آیا ہے. ایک ورس ہے بائبل میں جو ٹرینٹی کے قریب ہے, وہ فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 میں, جس میں لکھا ہے For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word and the Holy Ghost, and these 3 are one. یہ جو جملہ ہے فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7, پہلا ایپسٹل جان کا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 کا, ٹرینٹی کے سب سے قریب ہے. لیکن یہ جملہ بھی اکارڈنگ ٹو دا اسکالرز آف کرسچینٹی, جب آپ ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن پڑھیں گے بائبل کا, revised by 32 scholars of the highest eminence, backed by 50 different corporate denominations, 32 سب سے بڑے اہم important biblical scholars نے ریوائز کیا بائبل کو, backed by 50 different Christian کے groups. وہ scholars کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7, یہ بائبل میں it is a concoction, it is a fabrication, it is interpolation, یہ ملاوٹ ہے اور بائبل کے باہر نکال دیا. تو سب سے قریب جو جملہ تھا ٹرینٹی کے, وہ بھی کرسچن اسکالرز نے نکال دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں دعویٰ کیا خدائی کا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 28 میں, میرے والد میرے سے مہان ہیں. گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں, میرے والد سب سے مہان ہیں. گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں, میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے. I cast out devil with the spirit of God. Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20 میں,
I with the finger of God cast out devil. मैं अल्लाह की मदद से शैतान को भगाता हूं। उनने कभी भी खुदाई का दावा किया ही नहीं। उनने क्लियरली कहा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 30 में, चैप्टर 5 वर्स नंबर 30 में, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। जिस तरीके से मैं सुनता हूं उस तरीके से अदल करता हूं, और मेरा इंसाफ सही है। Whatever I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. क्योंकि मैं अपनी रजा से कुछ नहीं कहता हूं, जो अल्लाह की रजा है वो मैं करता हूं। और कोई भी शख्स कहता है कि मैं अल्लाह के हवाले करता हूं अपनी रजा, उसे कहते हैं मुस्लिम। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी खुदाई का दावा नहीं किया। और अगर हम देखते हैं द कैथलिक कैटेकिज्म, जो चर्च का होता है कैथलिक कैटेकिज्म, उसके अंदर कहा गया है अबाउट ट्रिनिटी, द फादर इज अ पर्सन, द सन इज अ पर्सन एंड द होली गोस्ट इज अ पर्सन। दे आर 3 पर्सन बट 1 पर्सन। जो जुमला लिखते कि हम 3 खुदा ने खुदा में मानते, 3 डिफरेंट पर्सन में, ये कैथलिक कैटेकिज्म में, द फादर इज अ पर्सन, द सन इज अ पर्सन एंड द होली गोस्ट इज अ पर्सन, बट देन 3 पर्सन, द 1 पर्सन। आदमी 1, आदमी 2, आदमी 3, बट 3 आदमी ने 1 आदमी। ये कैसी जबान है? हम एक खुदा 3 आदमियों में, लेकिन 3 ने 1 है। जब कोई ईसाई फादर के बारे में सोचता है, उसका एक तस्वुर होता है जहन में। जिस तरीके से सेंटा क्लॉज बैठा हुआ है फलक के अंदर और उसका फुटस्टूल है अर्थ, ये पृथ्वी उसका फुटस्टूल है। जब फादर के बारे में सोचता है, ऐसा तस्वुर उसके दिमाग में होता है, लाइक सेंटा क्लॉज कायनात में बैठा हुआ है, यूनिवर्स में, विद अर्थ एट द फुटस्टूल। जब वो सोचता है सन, उसके बारे में एक तस्वुर आता है, अ वेरी हैंडसम मैन, tall handsome man with blue eyes, somewhat like Jeffrey Hunter who acted in the film The King of Kings. जिस तरीके से जेफरी हंटर ने एक्टिंग किया था, एक पिक्चर आई थी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, किंग ऑफ किंग्स। गोरा आदमी, टॉल, हैंडसम, खूबसूरत, नीली नीली आंखें, उसका तस्वुर है। जब वो सोचता है होली गोस्ट ऑफ स्पिरिट, वो सोचता है जिस तरीके से एक डव, एक परिंदा आया था ईसा अलैहिस्सलाम के पास when he was being baptized, या the feast of Pentecost, उसे कहा गया स्पिरिट। उसके 3 तस्वुर, अलग तस्वीर रहते दिमाग में। जब हम पूछेंगे आप जब ट्रिनिटी के बारे में सोचते आपके कितने तस्वीर है, कितना तस्वुर आपके दिमाग में, तो वो कहेगा 1। वो झूठ बोल रहा है। 3 अलग अलग डिफरेंट तस्वुर है। जब फादर का सोचता है, he has a different picture. When he thinks about the son, he has a different picture. When he thinks about the spirit, he has a different picture. 1 + 1 + 1 3 होता है, 1 नहीं। Hope that answers the question. एक सवाल जोसेफ नोरोना का है। वो पूछते हैं, ईसा मसीह तो बाइबल में कहता है कि मैं इब्राहिम से पहले हूं, तो फिर वो खुदा कैसे नहीं? भाई ने जो सवाल किया, उन्हें बाइबल का हवाला नहीं दिया। वो जिक्र कर रहे थे गॉस्पेल ऑफ जॉन के बारे में, चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 58, जहां ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं आई एम बिफोर इब्राहिम। और इससे कुछ ईसाई ये साबित करना चाहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। क्यों ये कहना चाहते? उनके 2-3 वजह हैं। अगर हम इसकी मानी लेते आई एम बिफोर इब्राहिम, उसका मतलब ये होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम से पहले थे। ये कौन कह रहा है? हम जब देखते हैं हमें पता लगता है बाइबल में, इन द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 5 में लिखा है कि गॉड कहते हैं जेरेमाया से, क्या आई न्यू यू बिफोर आई सैंक्टिफाइड यू इन द वूम ऑफ योर मदर एंड बिफोर यू वर बोर्न आई हैव सैंक्टिफाइड यू एंड सेंड यू एज अ प्रॉफिट टू द नेशन। इसका मतलब कि खुदा के इल्म में सारे इंसान थे। सारे इंसान इस दुनिया में आने के पहले
खुदा के इल्म में थे, ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले वो भी खुदा के इल्म में था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आने वो भी खुदा के इल्म में था। तो इससे ये साबित नहीं होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा थे। लेकिन वो और एक हवाला देते हैं, जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना व तआला भेजते हैं फ़ारो के पास अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, इसका जिक्र है बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 14 में, जब खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से जाके पैगाम पहुंचाओ फ़ारो को, और उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं मैं लोगों से क्या कहूं कि किसने मुझे भेजा है। जब बनी इसराइल को पैगाम पहुंचाने के लिए कहते तो मैं क्या कहूं उनसे, किसने भेजा है। तो खुदा जब जवाब देते उनसे कहो टेल देम आई एम हैज सेंड यू। खुदा कहते मैं आई एम हूं, और उनसे कहो कि आई एम ने भेजा है। एक नाम खुदा का ईसाई के हिसाब से है आई एम ने भेजा है। अगर हम मान भी लेते हैं कि आई एम खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, खुदा का नाम है, तो हम जब ट्रांसलेट करते आई एम बिफोर इब्राहिम के मानी होते खुदा इब्राहिम से पहले, इसमें हमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन लोग दोनों को मानी को भी मिलाते हैं और नाम भी मिलाते। आई एम अगर खुदा के लिए है, अगर देखा जाए तो जो लफ्ज जो प्रॉपर नाउन होता है वो वही रहता है। जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया था बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 14 में, वो हिब्रू लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, ये है एशे। लेकिन जो अरामिक और ग्रीक में न्यू टेस्टामेंट में इस्तेमाल किया गया गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 में वर्स नंबर 58 में, वो लफ्ज है इगोएमी। दोनों का फर्क है। मान भी लेते अगर एक है तो भी इससे ये साबित नहीं होता कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। इससे ये साबित होता है कि खुदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले थे। इससे कहीं साबित नहीं होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदाई का दावा किए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। पेपर स्लिप पर आए हुए सवालात के ये आखिरी सवाल है इस कड़ी का। आपने कहा है कि लिबास दूसरे मजहब की यकसानियत वाला न हो। आपने जो लिबास पहना है जो ईसाइयत की मुशाबहत वाला माना जाता है, ये क्या है? सवाल पूछने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा। भाई ने सवाल पूछा है कि जो मैं लिबास पहना हूँ, कोट टाई शर्ट पैंट, ये ईसाई मजहब की निशानी है, तो क्या जायज़ है? तकरीर में तो मैंने कहा कि वो लिबास जो दूसरे मजहब की निशानी हराम है। इस सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। लोग को गलत फहमी है कि टाई और कोट ईसाई मजहब की निशानी है। जब हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि टाई ईसाई की निशानी है। ये गलत फहमी है लोगों में कि टाई क्रॉस की निशानी है। मैं जानता हूं कई मुसलमान सोचते हैं टाई द साइन ऑफ क्रॉस, ये टाई सलीब की निशानी है इसलिए हराम है। अगर हम तहकीक करते हैं, ये टाई सबसे पहली बार पहना गया था क्रोशिया में, टू कीप द गारमेंट्स ऑन द बॉडी। ये क्रोशिया का एक कल्चरल ड्रेस था, शुरू हुआ उधर, लाइक अ बो टाई स्टार्टेड देयर, वहां से शुरू हुआ और फिर फैला। ये टाई ईसाईयत की निशानी है ही नहीं। और एक रिसर्च किया गया था एक शख्स ने रियाद में इसके ऊपर ही, उससे कहीं ये नहीं मिला कि टाई ईसाई की निशानी है। ये तो हमारे मुसलमान जो वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ है, ये कहते ये टाई और कोट अगर आप कहते वेस्टर्न कल्चर, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये कहना कि ईसाई की निशानी है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कहीं भी बाइबल में जिक्र नहीं। आप अब्रॉड जाएंगे तो हिंदू भी कोट टाई पहनता है, मुसलमान भी पहनता है, क्रिश्चियन भी पहनता है। ये हमें गलत फहमी है कुछ मुसलमानों को। और जब आप ये अरब लोग जब तोप पहनते हाथ ऊपर करते हैं, तोप अगर पहना हुआ इंसान और हाथ ऊपर करता है वो तो लिखता है क्रॉस जैसा, लेकिन थोड़ी तोप ईसाई मजहब में निशानी है ईसाईयत की, वो तोप पहन सकता है। लोग बोलते शर्ट मत पहनो, कुर्ता पहनो। कमीज अरबी लफ्ज है शर्ट के लिए। कमीज का जिक्र कुरान मजीद में कई जगह है। सूरह यूसुफ में सूरह नंबर 12 कुर्ते का जिक्र है ही नहीं, कमीज का जिक्र है कुरान मजीद में।
क्या है, जानते यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते हैं और पीछे से शर्ट फट जाता है, उसका जिक्र है, कहानी है यूसुफ अलैहिस्सलाम की। कमीज कैसा था, हो सकता है ऐसा ना हो, बट कमीज का जिक्र है। तो लोग को गलत फहमी है कि शर्ट कोट टाई, आप कोई भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं अगर वो शरीयत के खिलाफ नहीं है। वो कल्चर अगर शरीयत के खिलाफ है तो आप फॉलो नहीं कर सकते। अगर ये वेस्टर्न कल्चर है, कोट पहनना शरीयत के खिलाफ है तो हराम है, शरीयत के खिलाफ नहीं तो मुबाह है। लेकिन और एक कल्चर है वेस्टर्न कल्चर में, शॉर्ट्स पहनना, ये कल्चर शरीयत के खिलाफ है, क्योंकि मर्द लोग का सतर है नाफ से लेके घुटने तक। तो अगर मैं कहूँ कि वेस्टर्न कल्चर फॉलो करके शॉर्ट्स पहनूंगा तो हराम हो जाएगा, क्योंकि शरीयत के खिलाफ है। लेकिन शरीयत में कहीं नहीं लिखेला टाई मत पहनो, कोट मत पहनो। तो टाई और कोट पहनना मुबाह है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्तहब है, मुस्तहब नहीं, फर्ज भी नहीं, मुस्तहब भी नहीं, मुबाह है। पहनने का है तो पहनो, मत पहनने का है मत पहनो। अच्छा लगता है पहनो, नहीं लगता है छोड़ दो। मैं थोड़ी जबरदस्ती कर रहा हूँ। और मैं भी हमेशा नहीं कोट टाई पहनता हूँ, क्योंकि मैं सैटेलाइट पे आता हूँ और मुख्तलिफ मुमालिक में मेरे प्रोग्राम जाते हैं, और वेस्टर्न कंट्री में कोट टाई एक फॉर्मल ड्रेस है, तो और कई गैर मुस्लिम मुझे देखते हैं, इसीलिए मैं पहनता हूँ। ये इस्लाम में मुबाह है, आपको पसंद है तो पहनो, नहीं पसंद तो मत पहनो, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि हराम है। ये आपको गलत फहमी है। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। आप सबकी तरफ से, इस कैंपस के सब जिम्मेदारों की तरफ से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ पे जो मजमा जमा है, बहुत यंग लोग हैं। मैं चाहता हूं कि पूना से भी कोई जाकिर नाइक तैयार हो। ऐसे बच्चे जो दिल में समझते हैं कि कुछ करना है, नॉलेज को हासिल करना है, कंपैरेटिव रिलीजन का स्टडी करना है, और इस मुल्क में जो बीमारियां लगी हुई हैं उनको दूर करने के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करना है, उनकी जिंदगी को चलाने के लिए हमारे कैंपस से पूरी मदद की जाएगी। इन लफ्जों के साथ जाकिर नाइक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि दिवाली की और ईद की छुट्टियां रहने के बावजूद इतने नौजवान इतनी बड़े पैमाने पर और आखिरी मिनट तक रुके हैं। वरना मैं देखता हूं जुमा की नमाज हो या और दूसरे नमाज हो, दुआ कब होती और कब हम निकलते। ऐसे बैकग्राउंड के ऊपर जब आप बोल रहे थे, क्योंकि आप कुरान की बात कर रहे हैं, लॉजिक की बात कर रहे हैं, हकीकत की बात कर रहे हैं, और मैं इन लफ्जों के साथ आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अगले साल वापस मिलेंगे, इससे दुगनी तादाद में मिलेंगे, और अमन का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में आपके जरिए हम फैलाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। قد أتانا الرسول